पिछले 10 सालों में तो बहुत कुछ दिया गया। इसलिए ये कहना कि ये प्रॉब्लम इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सही नहीं है। किसी आवाज़ में, किसी आंदोलन की आवाज़ में जो मैंने सुनी है या अखबारों में देखी है, उन्होंने इकोनॉमिक पैसेज की आवाज़ नहीं उठाई। उनकी एक ही आवाज़ है, आज़ादी, ऑटोनॉमी, हिंदुस्तान की सरकार से मुक्ति। मैं अभी आपको पढ़ के सुनाऊंगा वहाँ के बयान। तो इसलिए आप ये देखें, और तमाशा ये है कि जब सरकार वहाँ कमेटी अपॉइंट करती है, इकोनॉमिक आपने पैसेजेस दिए हैं उनको, तो ये तीसरी बार आपने एक कमेटी बनाई है। 2 बार भी पहले श्री रंगराजन की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उन्होंने रिपोर्ट दी, डेवलपमेंट के लिए रिपोर्ट दी। क्या हुआ उसका? वो कहाँ गई रिपोर्ट्स? तीसरी अब आपने फिर बना दी, और जब आपने बनाई तो उसके अंदर एक सज्जन ने तो कहा मुझसे पूछा ही नहीं गया। जो मिस्टर कलंदर है, वो कहते हैं कि मुझसे बिना पूछे, मेरी कंसेंट नहीं थी, लेकिन मुझे घोषित कर दिया गया कि मैं इस नई इकोनॉमिक पैसेज की कमेटी का सदस्य हूं। तो आप जब कमेटी ऐसी बनाते हैं, 2-2 कमेटी हो जाए, 3-3 कमेटीज हो जाए, उनकी रिपोर्ट पर चर्चा नहीं होती, वो कहाँ है, ठंडे बस्ते में पड़ी है या कहाँ चली गई, कुछ पता नहीं चलता। फिर आप एक कमेटी बनाते हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि आज घाटी के लोगों में आपकी सरकार के लिए कोई विश्वास नहीं है। दे हैव नो ट्रस्ट कि आप जो कुछ कहते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते। आप जो कुछ ऐलान करते रहे हैं उसको आपने अंजाम नहीं दिया है। ये एक ऐसा तथ्य है जो वहाँ के तमाम लोगों की जुबान पर है कि आप पर क्या भरोसा करें। मेरे सामने जिलानी साहब का बयान है, सैयद अली शाह जिलानी। उन्होंने ये कहा है कि आई डोंट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू दीज मीटिंग्स, जो मीटिंग्स हुई। व्हाट इज द प्राइम मिनिस्टर गोइंग टू ऑफर द पार्टी? There will be no result as far as the people of Jammu and Kashmir are concerned. These meetings are held in New Delhi under conviction that J&K is an integral part of India. Under conviction. Yes, it is a conviction. It is a constitutional fact. It is a historical fact. It is a geographical fact. It is a political fact. How can you say, वो कहते हैं कि under this conviction of it? It is. Then he says the government is not even ready to recognize the political problem of Kashmir, the aspirations of independence of the people of Jammu and Kashmir. This is the aspiration, not the economic development, not the package. It is there. As long as India, he says further, the people of Jammu and Kashmir, their rights, their power and independence, the struggle will continue. India will have to recognize the independence of Kashmir and allow the people of Jammu and Kashmir to determine their own fate. Any other form of government imposed from New Delhi is not acceptable to our people. This is the statement after the announcement from the Prime Minister. मांग क्या है? First, India must agree to withdraw all security forces from the state. Pakistan will also be asked to take back its troops. There should be a referendum on the future of J&K. Is it that premises on which you are going to hold the dialogues? This has been our demand for the last 62 years. India must accept this demand. इनसे आप डायलॉग करेंगे? आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दायरे में डायलॉग होना चाहिए। क्या ये उस डायलॉग की तरफ बढ़ाए जा रहे हैं कदम? फिर वो ये आगे कहते हैं कि these so-called talks have been going on since March 23, 1952. There have been at least 130 rounds so far between the government and the people of Kashmir. The result has been big zero. These talks are a futile exercise. They call us to fool us. They want to fool the people of Jammu and Kashmir. The government of India tries its tricks to deviate us from our struggle. ये 60 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये हालत हुई है. You are not trusted. You are supposed to be fooling the people of Kashmir. You are supposed to be fooling the people of India also. फिर आगे कहते हैं, all factions of the Hurriyat want freedom from Indian security forces and a referendum on the future of Jammu. This is what they want. Are you going to hold dialogue on this? Will it form the basis of your dialogue? Is it on the agenda? If yes, say yes openly. If no, then say no. It says, आगे कहता है कि
the people of Pakistan, Mr. जो आपकी वो है महबूबा साहब, जो PDP और सरकार के भी हिस्से में रही हैं, वो कहते हैं the PDP which welcomed the PM's opening remarks, however, reacted guardedly on the autonomy issue, saying Kashmir is not a problem between center and the state. It has both internal as well as external dimensions which have to be addressed. Devolution of powers can be a part of resolution, but cannot be a resolution by itself, because we need to sort out relations with the other side of the Kashmir. क्या आप उसे बातचीत में शामिल करेंगे? क्या पाकिस्तान को बातचीत में शामिल करेंगे? What is the external dimension? ये तो बात साफ कर दी उन्होंने कि there is an external dimension. And मैं आपको बताना चाहता हूं कि external dimension है. इस stone pelting के पीछे भी external dimension है. There is an external dimension. How are you going to solve it? Do you agree there is an external dimension? कैसे आप इसको resolve करें? फिर आगे वो कहते हैं, Meanwhile, Umar Farooq and Mr. Abdul Ghani Bhatt rejected the autonomy offer, saying it was no solution to the problem that is begging resolution for the past 6 decades. Autonomy is an arrangement between Delhi and Srinagar. Kashmiris have tasted autonomy, the autonomy that swallowed the Prime Minister of Jammu and Kashmir's body and soul together. Therefore, this autonomy is meaningless, they say. The chairman of the hardline faction of Hurriyat, Sayyid Ali Shah Jilani, said the PM has spoken many words on Kashmir, but neglected the real issue. I want to make it clear that the jobs and economic packages cannot be substituted to the right of self-determination of Kashmir. आप economic package देते जाइए, वो कहते हैं this is no substitute. What we want is freedom from India, freedom from the yoke of Indian forces. The government of India should not impose any administration set up in Jammu and Kashmir. ये अगर बात है तो फिर आप हमें ये बताएं कि आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, क्या डायलॉग आप करेंगे, किस तरह का डायलॉग करेंगे, कब तक करेंगे, और क्या आप अलगाववादियों को सारे खेल खुल के खेलने देंगे? ये बुनियादी सवाल है कि आप जरा इसको देखें। कुछ दिनों पहले जहां तक मुझे याद पड़ता है, आर्मी चीफ ने एक बात कही थी कि हमने टाइम मिस कर दिया, हमने मौका चूक दिया। तो सही बात कही थी। बाद में ज़रूर ये कहा गया कि आर्मी चीफ को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, सेमेंटिक्स के लिए पॉलिटिकल नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही बात की थी कि ये जो समस्या आई वो इसीलिए आई कि एक वक्त था जब बहुत से ये आंदोलनकारी शांत थे, मिलिटेंसी मार्जिनलाइज थी, और बहुत सारे लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल होने के लिए तैयार थे। एक वक्त था जब जिलानी साहब भी आपकी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में शामिल थे, मगर क्या हो गया? क्या हो गया? ये जो आपकी नीतियां हैं उनका नतीजा ये है, इस बात को अच्छी तरह समझ लें। और अब वो ये कहते हैं कि अगर ये सब लोग आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उस वक्त ले आते तो शायद ये आज की हालात पैदा नहीं होती। फिर अप्रैल के महीने से, जैसे मैंने कहा, कि ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही थी और गृह मंत्री जी को ज़रूर जानकारी होगी कि वहाँ कुछ बड़े अजीब अजीब किस्म के लोकल लेवल एक्टिविस्ट खड़े हो गए थे। कुछ नए चेहरे, ख़ास तौर पर जो वेस्ट से आ रहे थे, मुस्लिम फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़, वो वहाँ दिखाई दे रहे थे घूमते हुए और लोगों से बातें हो रही। हमें ये जानकारी है और आपको भी होगी कि एक वक्त बहुत बड़ी तादाद में मुजाहिदीन को उन्होंने सरेंडर किया था। उनको ये वचन दिया गया था कि जब वो जेलों से बाहर आएंगे तो उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। 10-12 हज़ार या 15 हज़ार की तादाद में वो लोग थे। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपने उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया। उन्हीं में से एक सज्जन ने ये बताया, अखबारों को बयान दिया कि मैं तो इस चिंता में था कि किसी तरह से हम रिहेबिलिटेट होंगे, लेकिन जब वो नहीं हुआ तो मेरे पास एक मेरी विधवा माँ है और एक छोटी बहन है। मुझे 5,000 रुपये महीने ये सेपरेटिस्ट की तरफ से मिल रहा है और मैं आज उनके लिए स्पोक्स पर्सन बना हुआ हूँ। मिस्टर आलम, आपने क्या किया? आपका रुपया कहाँ जा रहा है? कौन सा डेवलपमेंट आप कर रहे हैं? क्या इकोनॉमिक पैसेज है? ये 10,000 लोग अगर आज वहाँ खड़े हैं, अंदर अंदर सुलग रहे हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार झूठी है,
तो गलत तो नहीं कहेंगे। आपकी नीतियां बिल्कुल नाकारा साबित हुई। आपका ध्यान नहीं है कश्मीर की तरफ, और आप इस तरह से, और आज वही लोग हैं जो ये स्टोन पेल्टिंग के अंदर लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आपको इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होगी, और अगर नहीं है तो माफ कीजिए, उसको जानकारी करने की कोशिश कीजिए। बयान दे रहे हैं अखबार में लोग कि हम वो लोग हैं जो हिंदुस्तान के साथ हमने अपनी सारा जो कुछ हमारा जिहाद था उसको छोड़ के हम आए थे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? ऐसे एलिमेंट्स को भी आप साथ नहीं रख पा रहे। ये आप जरा गौर से देखिए कि आपकी कोई पॉलिसी, कोई नीति वहां सफल नहीं हुई। और जहां तक आप इस स्टोन पेल्टिंग के बारे में, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बहुत दिनों का, और जो हिंदुस्तान की सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इकोनॉमिक पैकेज नहीं दिया, इसका नतीजा है, ये भी बिल्कुल गलत बात है। ये नतीजा है आपकी कश्मीर के बारे में और पाकिस्तान के साथ हुई वार्ताओं के नजरिए को देखकर इसलिए हुआ है। अगर आपने वो नीतियां न बदली होती जो एनडीए सरकार ने वाजपेयी जी के नेतृत्व में चलाई थी, तो शायद ये हालात पैदा नहीं हुए होते। एनडीए की सरकार ने, गृह मंत्री जी, एनडीए की सरकार ने इस बारे में स्पष्ट ऐलान किया था और ये कहा था कि इंसानियत के दायरे में हम सारी बात करेंगे, मगर ऑटोनॉमी और आज़ादी का सवाल नहीं है। डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स हो सकता है, और वो भी इस आधार पर हो सकता है कि सारे देश के लिए सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप का विचार किया जाए। उसको करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हालात बदलते हैं, उसके मुताबिक केंद्र और राज्यों के संबंध में समय के मुताबिक, आवश्यकताओं के मुताबिक कुछ न कुछ फेर बदल हो सकता है, कुछ अधिकारों के अंदर आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन आप उस तरफ भी आगे नहीं बढ़े। आपके प्रधानमंत्री जी ने हमारे पहले जाकर कह दिया कि पाकिस्तान ये भी विक्टिम है आतंकवाद का, फिर कहा बलूचिस्तान का जिक्र जोड़ दिया उसके ऊपर। और इतना ही नहीं, जो मुशर्रफ साहब को वाजपेयी जी की सरकार ने जो उनसे समझौता करवा लिया था कि आतंकवाद उनको समाप्त करना होगा, और जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक बातचीत नहीं होगी, आपने ये कह दिया कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ चल सकती है। ये सवाल जिसमें आपने ये रास्ते खोल दिए कि आतंकवाद जो है वो चलता रह सकता है, तो कश्मीर में भी चलता रह सकता है। मुजाहिदीनों को आने के लिए आपने खुली छूट दी, कश्मीर का वातावरण बिगाड़ने के लिए आपने खुली छूट दी। फिर एक बात पे आप गौर करिए जिसकी वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं। अमेरिका अफगानिस्तान से निकल के भागना चाहता है, इसमें उसे पाकिस्तान की मदद की जरूरत है। पाकिस्तान को बेहिसाब मदद दी है उसने, आर्थिक मदद दी है, सामरिक मदद दी है, और पाकिस्तान भी खेल खेलता रहता है अमेरिका से। कभी 2-4 तालिबान पकड़ लेता है और फिर कहता है कि अगर पाकिस्तान को रेडिकलाइजेशन से रोकना है तो जरा मेरी मदद कीजिए, कश्मीर में मुझे कुछ दीजिए, कश्मीर में कुछ छूट दिलवाइए हिंदुस्तान से। और बार बार इसी बारे में अमेरिका हम पर दबाव डालता है कि भाई कुछ करो। हमें शक हो जाता है कि हमारी सरकार, प्रधानमंत्री जी आज यहाँ नहीं है, विदेश मंत्री जी यहाँ नहीं है, लेकिन वो बार बार से इस मामलों में एक बहुत हाथ जोड़ने की नीति का अवलंबन करती है। ये गलत बात है। आप अमेरिका के और पाकिस्तान के हितों के लिए भारत के हितों का बलिदान नहीं कर सकते। अमेरिका अफगानिस्तान में पिटता है या रहता है